بات کریں گے میٹرک بورڈ انتظامیہ کی سب تدابیریں ناکام ہوئی ہیں۔ نقل مافیا پرچہ آؤٹ کرانے میں کامیاب۔ نقل مافیا نے میٹرک کا پہلا ہی پرچہ حل کر کے واٹس ایپ پر وائرل کر دیا۔ جی ہاں، میٹرک بورڈ انتظامیہ کی سب تدابیریں ناکام ہو چکی۔ نقل مافیا پرچہ آؤٹ کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ نقل مافیا نے میٹرک کا پہلا ہی پرچہ حل کر کے واٹس ایپ پر وائرل کر دیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں آئمہ خان سے۔ آئمہ، پرچہ نقل مافیا کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ جی بالکل، دیکھیں میٹرک بورڈ کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ 8:50 پر اگر کوئی پرچہ جو ہے وہ آؤٹ ہوتا ہے، 50 منٹ پہلے اگر کوئی پرچہ آؤٹ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ بورڈ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بورڈ سے جو ہے وہ سینٹر کافی دور دور ہوتے ہیں، تو پرچے کی ترسیل جو ہے وہ 6 بجے سے جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے اور کچھ پرچوں کی ترسیل جو ہے وہ 7:30 بجے یہاں قریبی سینٹر تک جو ہے وہ پہنچانے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ بیچ راستے میں سے اگر کوئی پرچہ جو ہے وہ کوئی لیک کر دے تو اس میں جو ہے وہ بورڈ ذمہ دار نہیں ہوتا، ایسا کہنا تھا چیئرمین میٹرک بورڈ کا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روایت جو ہے وہ برقرار رہی اور جو ہے وہ روایت برقرار رکھتے ہوئے جو ہے وہ 9:15 پر جو ہے وہ مختلف واٹس ایپ گروپ پر جو ہے وہ پرچہ لیک ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اور یہ نہیں کہ صرف لیک ہوا پرچہ جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ پر آگے تھا، بلکہ جو ہے وہ حل شدہ پورا پرچہ جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ پر مختلف واٹس ایپ گروپ پر جو ہے وہ گردش کر رہا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ میٹرک بورڈ کی جو تمام تدابیریں تھی وہ جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میٹرک بورڈ کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ رہے گی، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین جو میٹرک بورڈ ہے انہوں نے مختلف جو ہے وہ اسکول کا سینٹرز کا جو ہے وہ دورہ بھی کیا ہے، اور دورے کے دوران بھی جو ہے وہ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ تمام اسکولوں میں جو ہے وہ اچھے ماحول میں پرچے دیے جا رہے ہیں، لیکن کچھ اسکول ایسے ہیں جو شہر کے دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ویجیلنس ٹیمیں بھی جو ہے وہ پہنچ نہیں پاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ نقل مافیا سرگرم ہوتی ہے، بچوں سے جو ہے وہ پیسے لے کے ان کو جو ہے وہ چیٹنگ کرائی جا رہی ہوتی ہے۔ اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پہ جو کہ کافی دور علاقوں میں ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ٹیمیں بھی نہیں پہنچ پائی ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ نقل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ پر جیسے کہ روایت برقرار رہتی ہے، میٹرک کا پرچے جیسے ہی شروع ہوتے ہیں تو کافی دنوں پہلے ہی جو ہے وہ مختلف واٹس ایپ گروپ بنا دیے جاتے ہیں، اور واٹس ایپ گروپس پہ جو ہے وہ پرچے صبح سے ہی جو ہے وہ آؤٹ ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہوا، 15 منٹ پہلے 9:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا پرچے شروع ہونے کے لیے، لیکن جو ہے وہ 9:15 پر جو ہے وہ پرچے مختلف واٹس ایپ گروپ پر مختلف ناموں سے جو ہے وہ گردش کر رہے تھے، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد 10 سے 15 منٹ کے بعد جو ہے وہ سالٹ پیپر واٹس ایپ گروپ پر جو ہے وہ آ چکا تھا۔ اور اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میٹرک بورڈ کی جتنی بھی تدابیریں تھی وہ جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ موبائل فون کی روک تھام کے لیے بھی جو ہے وہ جو تدابیریں کی گئی تھی کہ موبائل فون جو ہے وہ طلبہ کو استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سینٹرز میں جو ہے وہ موبائل فون کے ذریعے بھی جو ہے وہ نقل کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ پر نقل مافیا جو ہے وہ سرگرم بھی ہے۔ جی اچھا آئمہ، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چیئرمین میٹرک بورڈ شرف علی شاہ نے اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 50 منٹ قبل پرچے سینٹر میں پہنچاتے ہیں اور قریب والے سینٹر میں 20 منٹ قبل بھیجے جاتے ہیں۔ تو آئمہ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پرچہ لیک ہوا ہے وہ حل شدہ ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے اس بات کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے اوپر لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا یہی بتانا ہے کہ اگر 50 منٹ پہلے کوئی پرچہ لیک ہو جاتا ہے تو اس میں بورڈ ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ پرچوں کی ترسیل دور دراز کے سینٹرز میں جو ہے وہ پہلے کر دی جاتی ہے، اور سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے دور میں جو ہے وہ اس طرح کی نقل کو روکنا جو ہے وہ بہت مشکل ترین کام ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران بھی کہی تھی۔ ان کا یہی بتانا تھا کہ سوشل میڈیا کے دور میں جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے لیک ہونا، تو وہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی ایک جگہ سے پرچہ جو ہے وہ لیک ہوتا ہے تو وہ جیسے 6 بجے اگر یہاں سے پرچے کی ترسیل ہو رہی ہے، 7 بجے پرچے کی ترسیل ہو رہی ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ 2.5 گھنٹے کا وقت اس میں جو ہے وہ مارجن آتا ہے، 2.5 گھنٹے کا مارجن آتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی دیر میں اگر کوئی پرچہ لیک ہو رہا ہے تو اس کو مکمل طور پر جو نقل مافیا جو واٹس ایپ گروپ پر اسپیشلی جو ہے وہ سرگرم
एग्जाम होती है वो भी बच्चों से पैसे लेके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं और वहाँ पे जो है वो सॉल्व पेपर भी जो है वो उनको दिया जाता है। 2.5 घंटे का मार्जिन जो बीच में आता है उसमें पेपर्स को जो है वो सॉल्व भी कर लिया जाता है और उस सॉल्व पेपर का बाकायदा तौर पर पूरे PDF बना के जो है वो फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जो है वो गर्दिश करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो हमें सॉल्व पेपर भी जो है वो दस्तयाब होते हैं। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह ने पेपर लीक होने की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया। कहते हैं 50 मिनट कबल पर्चे सेंटर में पहुंचाते हैं, करीब वाले सेंटर में 20 मिनट कबल भेज देते हैं। अगर पर्चा इम्तिहानी मरकज से वायरल होता है तो बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है। कहीं से भी जो हमें कोई किस किस्म की जो है वो नेगेटिव इतला नहीं मिली है। हम जो है 50 मिनट पहले पेपर जो है वो सेंटर पहुंचा देते हैं और जो है वो तकरीबन जो करीब सेंटर होते हैं तो उसमें 20 मिनट 25 मिनट पहले जो है पहुंचा दिया जाता है। तो पेपर आउट जो हो के कंसेप्ट हम जब अगर सेंटर पे पहुंच जाता है वहाँ से किसी भी जो है वजह से, क्योंकि वहाँ पे सेंटर सुपरिटेंडेंट पेपर खोलता है और जितने ब्लॉक क्लासरूम होते हैं किसी में 25 होंगे, किसी में 15 होंगे, किसी में 40 होंगे, वो काउंट करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उनको भी जो है 20-25 मिनट लगते हैं जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में, ताकि इन्विजिलेटर वो पेपर मुख्तलिफ जो है वो ब्लॉक्स में ले जाए। तो उसी दौरान अगर किसी ने व्हाट्सएप कर दिया या निकला तो इसको हम जो है पेपर आउट नहीं कहते। दफ़ा 144 नाफिज की थी, उसका अमल कराना हुकूमत का काम है। अगर सेंटर पे पहुंचने के बाद अगर किसी आउट क्या कहते हैं, आउट मतलब क्या, किसी फोटो सेल मशीन पे आया है, वो जो है मोबाइल पे आया है, तो ये किस्म की अफवाहें भी होती हैं और इसमें मैं जो है इसकी तरदीद करता हूँ। अगर होगा तो इस सेंटर के टाइम पे जो है किसी ने उसका फोटो कॉपी निकाल लिया। मैट्रिक के इम्तिहान का आगाज़ इंतज़ामिया की जानिब से बद इंतज़ामी। तकरीबन 600 तलबा के लिए सिर्फ 120 गज के स्कूल को इम्तिहानी मरकज़ बना दिया, जहाँ सिर्फ 2 पुलिस एहलकार तैनात है। स्कूल के बाहर वालिदैन और नौजवान भी मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आज से सानवी तालीम बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के जो सालाना इम्तहानात है उसका आगाज़ हो गया है, लेकिन हमने देखा है कि इम्तहानात के आगाज़ से कबल ही जो है वो सानवी तालीम बोर्ड की जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से बे इंतहा गफलत ना सिर्फ देखने में आई, बल्कि हमने देखा है कि एडमिट कार्ड के हसूल में भी जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वालिदैन परेशान है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे कि आज से इम्तहानात का आगाज़ हो गया है, तो इम्तहानात के आगाज़ के साथ ही हम देख रहे हैं कि दफ़ा 144 का निफास हो गया, लेकिन उसकी भी जो है वो धज्जियाँ उड़ा दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी बटाई कॉलोनी में और अगर मैं देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो वालिदैन तो मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी देर से जो है वो मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर बात करें पुलिस एहलकारों की, तो सिर्फ 2 पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जबकि दफ़ा 144 का निफाज इसलिए किया गया है कि इम्तिहानी मराकज़ के इतराफ जो है वो कोई भी रश मौजूद ना हो। इम्तिहानी मराकज़ से जो है वो कुछ डिस्टेंस पे जो है वो लोग मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इम्तिहानी मराकज़ की तरफ बिल्कुल रश नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। सिर्फ 2 पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने फ़राइज़ के अंजाम दही के लिए आए हैं। जबकि इस निजी स्कूल के हवाले से बात करें जहाँ पे सेंटर पड़ा है, तो इसमें तकरीबन 591 उम्मीदवार जो है वो पेपर दे रहे हैं। इसके साथ साथ 2 शिफ्टों में जो है वो इम्तहानात हो रहे हैं 9वीं और 10वीं के, और उसके साथ साथ मजमूई तौर पर कराची में 505 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। जी, शहर भर में नहम और दहम जमात के इम्तहानात का सिलसिला जारी है। लांढी नंबर 3 के गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर वालिदैन परेशान हैं। कहते हैं इस सेंटर में पंखे हैं, ना ही वॉशरूम, ना ही पानी की कोई सहूलत मौजूद है। मज़ीद जानते हैं फरहान खान से। बिल्कुल, मैट्रिक और 9 के इम्तहानात का जो वो सिलसिला शुरू हो गया। आज जो वो पहला पेपर जो है वो लिया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस का पेपर आज 9:30 बजे जो शुरू होगा। इस वक्त मैं लांडी नंबर 3 गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। कुछ पेरेंट्स जो हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त जो है वो पेपर का अब से कुछ देर बाद शुरू भी होने वाला है, लेकिन अभी तक जो वो बच्चों को अंदर क्लासेस के अंदर नहीं बिठाया गया है, ना ही भी कोई भी सहूलियात फराहम किया। आपने अंदर विजिट करके भी आए, आपने क्या देखा है, किन किन सहूलियात का अंदर फुकदान है? सर मैंने तो अभी यही देखा है कि अभी तक कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। टाइम देखें आप क्या हो रहा है। अभी तक मैं बेटे को बोल चुका हूँ कि भाई क्या हुआ, बार बार मैं जाके देख रहा हूँ, तो अभी भी यही हो रहा है कि अभी आए नहीं कोई, अभी आया ही नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अभी मेरे ख्याल से शीट भी नहीं लगी है, शायद मार्कशीट जो लगती है वो भी नहीं लगी है अभी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अंदर स्कूल की आपने कंडीशन देखी, क्या कोई सहूलियात नजर आ रही है? पंखे वगैरह की क्या सहूलियात है, वॉशरूम्स वगैरह की क्या सहूलियात है, और बच्चों के पानी पीने का कोई इंतजाम किया? कुछ भी नहीं है, पानी भी अपना लाएं, ना पानी का इंतज़ाम है, ना इधर वॉशरूम का, ना पंखे हैं,
हालत आप देख रहे हैं स्कूल की क्या हो रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो वालिदैन हमारे साथ मौजूद है, जो शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अंदर जो मुतादिद बार जो है वो अपने बच्चे से बार बार पूछने भी गए हैं कि क्या सहूलियात हैं। खुद भी बाज़ाहिर देख के आए कि अंदर ना ही क्लास रूम के अंदर पंखे मौजूद हैं, ना ही अंदर वॉशरूम की कोई सहूलियात है, बल्कि पीने के लिए बच्चों के पानी का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। जबकि बाहर जो है कूलर रखा गया है जिस पे जो है वो एक साहब बैठे हुए हैं और वो खुद जो है वो यहाँ पे पानी सप्लाई भी करेंगे और जूसेस वगैरह भी जो वो बेचेंगे। और साथ ही साथ जो वो अंदर इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई सहूलियात मैसर नहीं की गई हैं। जी, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने एडमिट कार्ड ना मिलने का मलबा तुलबा पर डाल दिया। शरफ अली शाह कहते हैं कि एडमिट कार्ड का मसला लोगों की नाअहली है जो डेडलाइन पर जमा नहीं करवाते। जो एजेंट इसमें मुलविस है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बारहा नोटिफिकेशंस के जरिए तलबा को आखिरी तारीख के बारे में आगाही दे दी गई थी। कहता हूँ जो डेडलाइन के बाद तक जो है फॉर्म जमा नहीं कराते, शहर में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो उनको इतनी अक्ल नहीं है कि हर चीज़ की आखिरी तारीख होती है, आखिरी तारीख होती है इम्तिहान हर एक का। लेकिन कराची में एक अजीब कल्चर है, लोगों के दिमाग में बात नहीं बैठती कि आखिरी तारीख को आखिरी तारीख से पहले जमा कराने चाहिए। वो आके सब प्रेशराइज करते हैं कि फॉर्म लो, मीडिया के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू, आपके जो है वो क्या कहूँ कि फॉर्म लो। तो उसी की बात को जो है हमें बारहा मना किया गया था कि आप जो है वो डेडलाइन से बाद फॉर्म न लें। जो मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था, हमें कहा गया था आप अनाउंस करें, आप बैनर लगाएं, हम अखबार में दें। हम डेली प्रेस रिलीज जारी करते थे, भाई डेट नहीं बढ़ेगी। उसके बावजूद जो है वो हमें प्रेशराइज किया गया कि आप किसी तौर पे जो है वो डेट रखें। इसीलिए हमारी कोई नुकताई नहीं है इसमें। लोग अभी तक जो फॉर्म लेके फिर रहे हैं कि फॉर्म नहीं लिया जाता, तो वो हमारी नाअहली नहीं है, वो कराची के लोगों की नाअहली, उन लोगों की नाअहली है जो लेके आते हैं फॉर्म डेडलाइन के बाद। हाँ, अगर किसी को भी जो है, हम आपको पता है कि हमने कहा था कि जो लेट फॉर्म आए हैं, जो हालत मजबूरी हमने एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको भी अगर कोई पेपर रहता है उनका, तो वो जो है हम एग्जाम के जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद उनकी हम डेट दे देंगे, वो आके हमारे पास जो है वो इम्तिहान दे देंगे। मैंने इस पर पहले नहीं सोचा था, ये एजेंट्स मैं न पहचानता हूँ। अभी मैं अपने स्टाफ को कहूँगा कि आइडेंटिफाई करें उन स्कूलों को जिनके एजेंट से वास्ता है, और न कोई एजेंट मैंने पहचाना है, न एजेंट को मैं जानता हूँ। लेकिन अभी आप जैसे आपने निशानी की है, तो अब मैंने स्टाफ से मीटिंग करूँगा कि वो स्कूल जिनका जो है वो वास्ता एजेंटों से है, वो एजेंट्स के थ्रू बोर्ड में जो है से कॉन्टेक्ट रखते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करें, उन स्कूल को हम जो है ज़रूर ऑन। दूसरी जानिब एडमिट कार्ड ना मिलने पर तलबा सरापा एहतजाज। बोर्ड इंतजामिया ने तलबा के मुतालबात मान लिए। 9वीं और 10वीं के इम्तहानी फॉर्म जमा कराने का एक और आखिरी मौका भी दे दिया है। जमात नहम और दहम के इम्तहानी फॉर्म लेट फीस के साथ 10 मई दोपहर 2:30 बजे तक जमा किए जाएंगे। नाज़िम इम्तहानात कहते हैं कि लेट फीस की कटौती में किसी भी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। मैट्रिक बोर्ड की नाअहली, तलबा के एडमिट कार्ड्स ही जारी न होने पर तलबा ने बोर्ड ऑफिस पर एहतजाज किया। सिटी 21 से गुफ्तगू में तलबा ने कहा कि पेपर शुरू हो रहे हैं, लेकिन हमारे ना फॉर्म जमा हुए, ना एडमिट कार्ड्स मिले, हम कैसे पेपर देंगे। हम सुबह 12:30 बजे खड़े हैं, 4 बजे तक तो एडमिट कार्ड नहीं दिया था। फिर उन्होंने 4:30 बजे बोला कि आप 6 बजे आना। अब दोबारा आए तो अब एडमिट कार्ड नहीं दे रहे। सुबह 12:30 बजे से अभी तक कोई बंदा उठ के नहीं आया पूछने क्या मसला है क्या तुम्हारे साथ। एडमिट कार्ड के लिए ही बेचारों को रुलाया जा रहा है, फॉर्म जमा नहीं करा रहे, फॉर्म जमा नहीं कर रहे। दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से चंद बच्चों के फॉर्म जमा ना हो सके, इन्हें 10 मई दोपहर 2:30 बजे फॉर्म जमा कराने का मौका दे दिया। लेट फीस बजरिए कैट्स 3500 रुपए जमा किए जाएंगे। तो कोई खास वजह उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन ये हुए बोर्ड ने जो है फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ा दी है कि आप 10 तारीख तक फॉर्म जमा करा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इनको जो है पेपर जो हो रहे हैं कल से पेपर और उसकी डेट भी आगे कर देनी चाहिए थी। फॉर्म जमा करने की डेट में अगर ये इजाफा कर रहे हैं तो पेपर के डेट में भी अगर ये इजाफा कर देते तो हमें ज़रा आसानी हो जाती, हम सुकून से अपने घरों को चले जाते। बोर्ड ऑफिस इंतजामिया का कहना है कि 7 से 11 मई तक बच्चों के रह जाने वाले पेपर्स इम्तिहानात के बाद दिए जाएंगे। कैमरामैन राना जाजेब के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों का डकैतियों के खिलाफ मलिक एंड लिंक रोड पर एहतजाज। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाहिरीन का कहना है कि आए रोज लाखों रुपए सड़क पर लूट लिए जाते हैं। पुलिस हदूद के तनाज़े में ही उलझी रहती है। मज़ीद जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लिंक रोड के ऊपर मौजूद हैं, जो कि मलिक एंड से रोड सुपर हाईवे की तरफ जाता है। यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज यहाँ के जो है वो मुकामी लोग कर रहे हैं, साथ साथ वो लोग कर रहे हैं जो सब्जी मंडी खरीदारी करने के लिए जाते हैं और उनको रास्ते में लूट लिया जाता है। एक हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिससे 28 तारीख को जो है वो एक वारदात हुई और लाखों रुपये लूट लिए गए। 28 तारीख को उसने
125 पे आए हुए थे, नंबर प्लेट भी नहीं था, 0 मीटर 125, 2 बंदे थे, आसला साथ में था जी, आसला साथ में था। और जो हमारे जेब में थे, जो हमारे साथ पैसेंजर था पीछे, उसको भी लूट लिया। और इससे पहले जो है ना तकरीबन ये रिवर्स में जब 28 तारीख से पहले 14 तारीख पे मेन सुपर हाईवे पे भाई बाइक पे बैठे हुए फिर आगे हमारे सामने बोलते गाड़ी लो को वरना हम फायर मारेंगे। तो हम क्या करें, या तो हमें इजाज़त दे दे गवर्नमेंट से, हम ये कह रहे, या तो हमें सेफ्टी दे दे। अगर ये नहीं है फिर मंडी वाले को बोलो भाई आप लोग अपने साथ अपना असला लेकर आओ, फिर यही तरीके है, फिर हम आपसे रिलीफ नहीं मांगेंगे। हम एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, उससे आज सुबह जो है वो वारदात की है, उससे जानते हैं कि जो है ना किस तरह ये वारदात हुई है, कितने पैसे लूटे और लूटने का तरीका कार क्या है इनका। लूटने का तरीका नहीं था इनका, साथ खड़े नहीं हो, गालियां बकी इन लोगों ने कि आप लोग साथ नहीं खड़े हो, एक एक करके आओ गाड़ी। 2 बंदे थे, सीडी पुरानी गाड़ी थी और एक के पास काले कपड़े थे, इसके पास पिस्टल था। 3 घंटे से ये एहतजाज जो है वो जारी है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन कोई ज़िले इंतज़ामिया का शख्स या पुलिस का कोई अफसर जो है वो अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचा, जिसकी वजह से मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक SSP मलिर मौके के ऊपर नहीं पहुँचेंगे तब तक एहतजाज जारी रहेगा। जी। लापता अफराद की बाजियाबी केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। पुलिस ने अदालत में लापता फरहान को पेश कर दिया। फरहान की बाजियाबी पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। जी हाँ, लापता अफराद की बाजियाबी केस की सिंध हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है। पुलिस ने अदालत में लापता फरहान को पेश कर दिया। फरहान की बाजियाबी पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी है। फरहान की बाजियाबी पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी है। लापता अफराद की बाजियाबी केस की सिंध हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है। पुलिस ने अदालत में लापता फरहान को पेश कर दिया। फरहान की बाजियाबी पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी है। पुलिस की जानिब से अदालत में लापता फरहान को पेश किया गया। फरहान कुछ दिन पहले बाजियाब होकर घर वापस आ गया था। आपको कहाँ, किसने उठाया और कहाँ रखा था? अदालत का लापता होने वाले फरहान से सवाल। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मुझे कुछ पता नहीं, फरहान ने अदालत में जवाब दिया। अदालत ने फरहान की बाजियाबी पर दरख्वास्त निपटा दी है। नाज़रीन, कराची में लूटमार करने वाले डाकू पुलिस से ज़्यादा अक्लमंद निकले। ईस्ट जोन पुलिस ने वारदातों के हवाले से हॉटस्पॉट बनाए और मुलजिमान से टकराव होने लगा तो डाकुओं ने वारदातों का वक्त ही तब्दील कर दिया। मज़ीद जानते हैं SSP ईस्ट डॉक्टर फरूख रजा के साथ मौजूद हैं मेराज अख्तर। मेराज, बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल, मैं उस वक्त मौजूद हूँ SSP ईस्ट डॉक्टर फरूख रजा के साथ। ईस्ट जोन में तकरीबन 18 थाने जहाँ पर क्राइम की सूरत-ए-हाल में बतदरीज जो पुलिस का दावा है कुछ कमी हुई है और इसके लिए क्या क्या इन्होंने टेक्निकली जो है उस मामला को हल करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए। कुछ हॉट स्पॉट्स थे जो कि बनाए गए और उसके बाद क्राइम में जब कमी आई तो हॉट स्पॉट जो थे वहां पर वारदातों में जो है कमी आने के बाद डाकुओं ने और स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने अपना वक्त तब्दील कर लिया पुलिस के खौफ से। ये कैसे हुआ तो ये हम जानते हैं। SSP ईस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरूख। डॉक्टर फरूख, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि ये अजीब सी बात थी कि डाकुओं ने अपना वक्त तब्दील कर लिया और आप लोगों की जो कोशिश थी वो मतलब फिलहाल तो रहेगा गई, तो क्या हुआ, क्या ऐसा? इसमें सिलसिला कुछ इस तरह है कि पुलिसिंग में एक कॉन्सेप्ट है कि टारगेट हार्डनिंग करनी होती है। आपने देखना होता है कि कहाँ पे कौन सी वारदात किस तरह हो रही है और उसके हिसाब से आपने स्ट्रेटजाइज करना होता है, अपनी हिकमत अमली तैयार करनी होती है। तो पुलिस ने बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए वो जगहें तलाश की जहाँ पे इस तरह का क्राइम हो रहा था और उसकी वजूहात क्या थी। अच्छा, मुल्जिमान के वक्त चेंज करने के हवाले से क्या कहेंगे कि देखिए बात यह है कि जब आप स्ट्रेटजाइज करते हैं, देखें क्राइम मैपिंग करते हैं कि कहाँ पे क्राइम हो रहा है और फिर किन औकात में हो रहा है, और जब आप टारगेट हार्डनिंग उन औकात में और उन जगहों पे करते हैं तो क्रिमिनल्स बड़े समझदार होते हैं, वो अपना रास्ता बदल देते हैं या फिर अपना टाइम बदल के मुख्तलिफ और जगहों को चुन लेते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग अपने हॉट स्पॉट्स को चेंज भी करते रहे हैं और औकात को भी अपनी पिकटिंग की, से फॉर इंस्टेंस मिसाल ले लें कि जी शाम के टाइम कहीं पे वारदात हो रही तो आपने वहाँ पे पुलिस पिकटिंग लगा दी तो वो डाइवर्ट हो जाएगा और किसी और टाइम पे आने की कोशिश करेगा और फिर जो नया डेटा आता है उसकी बुनियाद पे, ये बहुत साइंटिफिक तरीक़ेकार है क्राइम को प्रिवेंट करने का। तो उस हिसाब से हम अपनी पिकटिंग करते हैं और क्राइम में को कमी वाक़ई हो सकती है।
ठीक है, एसएसपी ईस्ट हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जो हॉट स्पॉट्स उन्होंने पहले बनाए थे वहाँ पे वारदातें कम हुई, लेकिन उसके बाद जो है मुलजिमान ने अपना वक्त तब्दील कर लिया। बहरहाल बिल्कुल अगर टेक्निकल तरीके से काम किया जाता रहा तो जुराइम में काफ़ी कमी आ सकती है। जी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची ने शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। मेयर कराची की जानिब से इंसदाद तजावुज़ात मुहिम का भी जायजा लिया गया। जी हाँ, अहम दौरा ये बात कर रहे हैं मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का यह दौरा है। दौरे के हवाले से तफसीलात जानेंगे शोएब मुख्तार से। जी शोएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, अपने कुछ देर कबल जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। मेयर कराची की जानिब से शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया है, जबकि उन्होंने इंसदाद तजावुज़ात मुहिम से मुतालिक भी मुतालिका हुकाम से ब्रीफिंग ली है। इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम जारी है। उनका कहना है कि शहर से तजावुज़ात के खात्मे तक जो है तजावुज़ात इस मुहिम को जारी रखा जाएगा। तमाम अफसरान तवज्जो, लगन और ईमानदारी के साथ अपने फराइज अंजाम दें। तरक्याती मंसूबों से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, जबकि सड़कों, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पुलों और फ्लाई ओवर्स के मंसूबे को तरजीही बुनियाद पर जो है वो हल किया जाएगा। जब उनका कहना था कि बारिशों में जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना होता है। इस सिलसिले में भी मॉनसून सीजन से कबल बरसाती पानी की निकासी के इंतजामात मुकम्मल किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। आपको बताएं कि इंसुलिन इंजेक्शंस और इनहेलर नायाब हो गए हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने मौके का फ़ायदा उठाकर कीमत 300% तक बढ़ा दी है। मेडिसिन मार्केट एसोसिएशन के नायब सदर आमिर मलिक ने कमिश्नर कराची से कार्रवाई का भी मुतालबा कर दिया। काविश मेमन से तफसीलात जान लेते हैं। काविश, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, शहर में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर दुकानदारों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी है और मामले का कमिश्नर कराची ने भी नोटिस ले लिया है। इस सिलसिले में होलसेल मेडिसिन मार्केट एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ आमिर मलिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आमिर भाई, बताइएगा, क्या अद्वियात की वाकई में कोई किल्लत है या मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है? सर, अद्वियात की किल्लत का आप ये अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि मसनूई किल्लत है ये, और इसके अंदर जो है एक तो इनहेलर आता है जो सांस के मरीज़ों के लिए आता है, वो शॉर्ट है, इंसुलिन शॉर्ट है, और कुछ ऐसे इंजेक्शन है जो प्रेगनेंसी के टाइम काम में आते हैं, वो भी मार्केट में अवेलेबल है नहीं। इसकी वजह जो है कंपनियां माल नहीं दे रही हैं ना, तो उसकी वजह से ना मसनूई किल्लत पैदा हो जाती है और मार्केट में माल महंगे दामों में बिकना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि कमिश्नर कराची ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया है, और मैं ये चाहता हूँ फौरी तौर के ऊपर इस पे कार्रवाई करी जाए, और ये चीज़ें जो चीज़ें शॉर्ट हैं वो कंपनियों से कहा जाए फौरी तौर के ऊपर होलसेल मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल वो चीज़ें अवेलेबल करें। अगर कोई दुकानदार इन कामों के ऊपर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे और इंसान की जानों से खेले, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, होलसेल मेडिसिन मार्केट एसोसिएशन का इस सिलसिले में मौक़िफ़ है कि जो अद्वियात साज कंपनियां हैं वो अपना मैकेनिज़्म बेहतर बनाएं ताकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई की सूरत बेहतर हो सके। उनका यह भी कहना है कि कमिश्नर कराची की टीमें शहर में काम कर रही हैं और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी। कोरंगी भटाई कॉलोनी का इम्तिहानी मरकज़ बराए फ़रोग़, हॉल में मौजूद तलबा नकल में मसरूफ़। सराय के मुताबिक नकल बोर्ड ऑफिस अफसरान की मिली भगत से की जा रही है। बिल्कुल, कोरंगी भटाई कॉलोनी का इम्तिहानी मरकज़ बराए फ़रोख्त है। मज़ीद इस पर बात करेंगे फरहान खान से। फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो वो 9वीं और 10वीं जमात के जो वो बाकायदा मैट्रिक और 9 के पेपर्स का आगाज़ किया गया था, और आगाज़ में जो वो हमने देखा है कि सेंटर्स जो बिकने का सिलसिला सामने आते लगा है। कोरंगी के सेंटर्स में तालीम बराए फ़रोग़ का जो है वो सिलसिला जारी है। कोरंगी भटाई कॉलोनी के अंदर जो है वो शहनाज इस्लामिक स्कूल है, जिसमें खुलेआम जो है वो नकल जारी थी। जबकि जब इसकी फुटेजेस हमें मौसूल हुई तो हम C21 की टीम जो है वो कवरेज के लिए वहाँ पे पहुंची हुई। तो जब कवरेज के लिए पहुंची तो कवरेज करने पर
सेंटर सुपरिटेंडेंट जो अंदर मौजूद होते हैं वहाँ तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए उन्होंने बाकायदा कवरेज करने पर जो है वो सहाफ़ी और कैमरामैन को जो वो धक्का भी दिया और कवरेज करने का मना भी किया और बार बार इस तरीके की चीज़ें कहते रहे कि आप हम पे जो है वो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस तरीके की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। जबकि हमने बाहर खड़े कुछ वालिदैन से बात की, उनका भी यही कहना था कि अंदर जो है जो पैसे दे रहा है उससे खुलेआम जो है वो चीटिंग कराई जा रही है। गाड़ियों के अंदर जो है वो पेरेंट्स आ रहे हैं और बच्चों को जो है वो लेके जाते हैं और 7 से 8 हज़ार रुपए के इवज में जो है वो बच्चों को बआसानी जो है वो पेपर की नकल करने दी जा रही है। जबकि जब सिटी 21 ने इसके ऊपर आवाज़ बनने की कोशिश की तो कैमरामैन और रिपोर्टर को जो है वो धक्के भी दिए गए और बार बार ये कहा गया है कि आप लोग दहशत गर्द हैं और किसी की भी किस्म की कोई फिटिंग नहीं हो रही, जबकि किसी भी किस्म का जो है वो अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। जबकि वालिदैन बाहर खड़े धूप में ये कहते रहे कि एक छोटे से स्कूल के अंदर जो है वो 4 बड़े स्कूलों का सेंटर रखा गया है जहाँ पे जो है बच्चों की जगह भी जो है वो सही तरीके से नहीं है, जबकि खुलेआम जो है वो चीटिंग भी कराई जा रही है। अच्छा फरहान, ये भी बताइएगा तकरीबन कितने तालिब इल्म इस वक्त यहाँ पर पेपर दे रहे हैं, कितने असातिज़ा इस सेंटर में मौजूद हैं जहाँ नकल करवाई जा रही है? जी बिल्कुल, 4 से 5 कमरों का जो है ये स्कूल है, जबकि ऊपर छत के ऊपर जो है टेंट लगा के बच्चों को बिठाया गया है जहाँ पे खुसूसी बच्चों को उन बच्चों को बिठाया गया है जहाँ पे उनकी नकल के लिए जिन बच्चों ने पैसे दिए हैं। जबकि स्कूल इस कदर छोटा स्कूल है कि कोई कमोबेश 60 गज के ऊपर स्कूल बना होगा। प्राइवेट स्कूल है जिसके अंदर सेंटर रखा गया। मैट्रिक बोर्ड की भी ना अहली है, इंतजामिया की ना अहली है कि एक छोटे से प्राइवेट स्कूल को जो है वो सेंटर मराकज़ बनाया गया जिसके अंदर बच्चों की जो है वो बैठने की भी जगह नहीं है। कमोबेश 200 से 150 बच्चे जो है वो इस सेंटर के अंदर पेपर दे रहे हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि आज कंप्यूटर साइंस का पेपर था जिसमें तादाद जो है वो कम होती है। जब ये पेपर दीगर पेपर होंगे तो जिनमें बायो कंप्यूटर और दोनों के बच्चे जो है वो मिक्स होंगे तो उस वक्त जो है वो इंतजामिया क्या है इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, क्योंकि अंदर वैसे ही इतने कम बच्चों की बैठने की जगह नहीं है। जब बच्चों की तादाद ज्यादा होगी, एक यकसा पेपर होगा सबका, तो उस पर जो वो इंतजामिया क्या करेगी। जबकि ऊपर खुली छत के ऊपर हमने देखा भी और पुलिस भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेंट लगाया हुआ है ऊपर बच्चों के लिए और वो उसको खुले आसमान के नीचे धूप में जो वो पेपर भी दे रहे हैं और साथ ही साथ नकल की भी फरहमी की पूरा इंतजाम किया गया सेंटर की जानिब से। और सीनियर सुपरिटेंडेंट साहब जो वो सामने तो जो वो अपनी हंगामा राय भी करते रहे, बदतमीजी भी करते रहे और यही कहते रहे कि आप बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, इस तरीके की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। जबकि हमारे पास ऐसी फुटेजेस मौजूद हुई है जिसमें साफ देखा जा रहा है कि बच्चा पेपर के साथ अपनी बुक रख के बैठा हुआ है और इसमें उसे वो बआसानी जो वो नकल कर रहा है। अच्छा फरहान, फुटेजेस सामने आ गई हैं, नकल सरेआम हो गई है, असातिज़ा मानने से इनकार कर रहे हैं, क्या फुटेज इसी सेंटर की है ये मालूम हो सका है? बिल्कुल, ये फुटेज इसी सेंटर की है। हमारे पास ज़राए से ये फुटेज मौसूल हुई जिसके बाद C21 की टीम जो है वो कवरेज के लिए यहाँ पे सेंटर पहुंची और बरास्ता हमने बाहर खड़े वालिदैन से भी जब बात करी तो उनका भी यही कहना था कि जो बच्चे गाड़ी के अंदर आते हैं उनको ये सेंटर सुपरिटेंडेंट साहब अपने साथ खुद अंदर लेके जाते हैं। और कुछ वालिदैन से भी हमने जब बात करी तो उनका ये कहना है कि फी पेपर जो है वो एक तलबा से 7 से 8 हज़ार रुपए की मांग की जा रही है। जबकि अगर किसी के पास ऐसा नहीं होते तो वो ये कहते हैं कि इससे कम नहीं किए जाएंगे, अगर आप हमें 7 से 8 हज़ार रुपए देते हैं तो आपके बच्चे का पेपर जो वो बआसानी कराया जाएगा। जी, इसी पर बात करने के लिए साजिद हुसैन MP हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त का। कहिएगा, इस तरह की बहुत सी हम देख रहे हैं कंप्लेंट सामने आ रही हैं। एक और केस सामने आया है कोरंगी बिटाई कॉलोनी का इम्तिहानी मरकज़ जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नकल करवाई जा रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। देखें जी, ये किसी एक स्कूल की बात नहीं है जी, ये पूरे एक सिस्टम की बात है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ऐसे लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था जिसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ भी बुलंद की थी, लेकिन आवान बाला में जो बैठे हुए लोग हैं उनके कानों तक जू नहीं रुकी है। और अभी फिर ऐसा ही हो रहा है कि ये एक मिली भगत के तहत ये बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। और अब देखें ना, जिस सूबे में हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे तालीम का बजट जो है ना वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से कम होगा, तो वहाँ पे हम लोग फिर क्या पैदा कर रहे हैं आप मुझे बताएं ना। यहाँ तो ये है कि एक गरीब का बच्चा पूरा साल मेहनत करता है और पेपर देने के लिए जाता है, और एक जो पावरफुल आदमी होता है वो पैसे दे के उसके बच्चा पोजीशन भी ले लेता है और गरीब का बच्चा पीछे रह जाता है। तो ये एक जुल्म है, ये ज्यादती है, इसके खिलाफ प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको करार वाक़या सजा दी जाए।
करार वाकई सज़ा देनी चाहिए जो लोग इस तमाम मामलात में मुलविस पाए जाएं। बहुत शुक्रिया साजिद हुसैन MP हमारे साथ मौजूद थे और इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे फरहान खान भी हमें अपडेट करे थे। आपका शुक्रिया। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज, पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। मैट्रिक के इम्तहानात में नकल माफिया का राज रहा। व्हाट्सएप ग्रुपों में नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा भी जारी कर दिया। इम्तहान शुरू होने से कबल ही पर्चा नकल माफिया के हाथ लग गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आयमा खान से जो इस वक्त नाज़िमाबाद के कम्प्रिहेंसिव स्कूल के सेंटर में मौजूद है। आयमा, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही है इस वक्त आप? जी बिल्कुल, देखिए मैट्रिक बोर्ड ने अपनी रिवायत, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे ही मैट्रिक के पर्चे शुरू होते हैं, इंटर और मैट्रिक के जैसे ही पर्चे शुरू होने का सिलसिला शुरू होता है तो हम ये देखते हैं कि आउट होने की बातें भी जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। और सुबह ही हमने देखा कि 9:15 पर जो है वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जो है वो पर्चा आ चुका था। ना कि सिर्फ पर्चा आ चुका था बल्कि जो है वो कुछ मिनटों के बाद जो है वो मुकम्मल हलशुदा पर्चा जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है वो गर्दिश कर रहा था। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हम देख रहे थे कि हलशुदा पर्चा जो है वो बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पर फराहम किया जा रहा था। मैट्रिक बोर्ड की जानिब से ये कहा गया था कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई थी। लेकिन हमने ये देखा कि मुख्तलिफ सेंटर्स ऐसे भी थे जहाँ पर जो है वो मोबाइल फ़ोन बच्चे सेंटर में भी लेकर आए और सेंटर में जो है वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए खुलेआम नकल भी हो रही थी। जबकि इसके अलावा बात करें तो 3,65,102 तलबा जो है वो इस साल मैट्रिक के इम्तहान दे रहे हैं। कराची में जो है वो 633 स्कूल है जिसमें से 138 सरकारी तालीमी इदारों को जो है वो सेंटर बनाया गया। बोर्ड की जानिब से ये कहा जाता है कि सरकारी तालीमी इदारों में जो है वो सहूलियात का फुकदान होता है, फर्नीचर मुकम्मल नहीं होता, बिजली की बंदिश का सिलसिला होता है, जिसकी वजह से जो है वो प्राइवेट इदारों को जो है वो सेंटर में तब्दील किया गया है। इस वक्त भी हम एक ऐसे सेंटर में मौजूद है, नाज़िमाबाद का कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है, गवर्नमेंट यहाँ पे जो है वो सेंटर बनाया गया था। और इस वक्त जो है वो यहाँ पे पहली शिफ्ट का पर्चा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। पहली शिफ्ट में जो है वो कंप्यूटर का पर्चा लिया गया है। 9:30 बजे से 12:30 बजे तक का वक्त जो है वो मुख्तस किया गया था और इस दौरान में जो है वो बच्चों ने यहाँ पे आके अपने पर्चे दिए। और हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, बच्चों पर्चा आउट होने की बात आज सुबह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप पर पर्चा आउट हो गया था। आप लोगों ने जो नकल की रोकथाम में किस तरह से अपना किरदार अदा किया? पर्चा आउट होने का तो हमें नहीं अंदाज़ा, लेकिन हमारा जो सेंटर है उस पर 424 बच्चा था। कंप्यूटर स्टडीज़ का पेपर था और बड़ा स्मूथली हमारे बच्चों ने यहाँ पे पेपर दिया है। और ये कि जहाँ तक चेयरमैन बोर्ड का भी यहाँ पे विज़िट रहा, कंट्रोलर साहब का भी यहाँ पे विज़िट रहा, मुख्तलिफ विजिलेंस टीम का भी यहाँ पे विज़िट रहा, तो उनका कहना यही था कि सेंटर्स पे पेपर हमारा जब पहुँचा है तो उसके बाद वो जो इन्विजिलेटर हैं उनके ज़रिए लीक हुआ हो तो हुआ हो, बाकी बोर्ड के ज़रिए पेपर लीक नहीं हुआ। और हमारे गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल में तो आप देखें लिखा हुआ है कि दफ़ा 144 नाफिज है और कोई भी गैर मुताल्लिक़ा शख्स स्कूल में नहीं आ सकता। और हमने नकल की रोकथाम के लिए पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ख़ास इंस्ट्रक्शन है कि हम किसी भी किस्म के चीटिंग मटेरियल, मोबाइल फ़ोन इसको अलाउ ना करें। तो हमारे सेंटर पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली पेपर रन हुआ और हम इसके लिए अल्लाह के शुक्र गुज़ार। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी आप? कहा कि गवर्नमेंट के स्कूलों में जो है वो सहूलियात का फुकदान होता है, लेकिन आपका स्कूल गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है, यहाँ पे जो है वो किस तरीके की आप लोगों ने सहूलियात बच्चों को प्रोवाइड की? क्योंकि कराची में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और गर्मी की वजह से जो है वो अक्सर बच्चे जो है वो बेहोश भी हो जाते हैं। तो आपने स्कूल में जो है वो किन सहूलियात का ख्याल रखा है? हमने बच्चों के लिए डिस्पेंसर माशाल्लाह हर कॉरिडोर में डिस्पेंसर लगाया है ताकि ठंडा पानी और सादा पानी बच्चों को मैसर हो सके। इसके अलावा मैंने बच्चों के लिए शरबत रूह अफ़ज़ा बनाया था और सैंडविच और बिस्किट का अरेंजमेंट रखा कि अगर इमरजेंसी में किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए तो हम उसको टेक केयर करें, हम बच्चे को उसका पेपर सफ़र ना हो। अच्छा, इस हवाले से क्या कहेंगे? मुख्तलिफ सेंटर्स में टीचर्स को यहाँ पर आयमा खान हमारे साथ मौजूद थी और जैसा कि कहा जा रहा है कि पानी भी ठंडा रखा गया है, शरबत भी बना के रखा गया है, सैंडविचेस भी रखे गए थे कि अगर हंगामी बुनियाद पर अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसको हम खिला पिला सके। बहुत शुक्रिया आयमा खान, हमें अपडेट करी थी पेपर्स के हवाले से।